بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح العجابی کا سبق نمبر 142 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو وقضا ای مثل سے لے کر اعلی غیر المختار تک پڑھیں گے۔ وقضا اور اسی طرح ای مثل ازید ذہب بہ، ازید ذہب بہ کی طرح قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، فی الزبر سے مراد ای فی صحائف اعمالہم، یعنی ان کے اعمال کے صحیفوں میں۔ فہو لیس من باب الاضمار علی شریطۃ التفسیر، تو یہ اضمار علی شریطۃ التفسیر کی قبیل میں سے نہیں ہے۔ لأنہ، کیونکہ لو جعل منہ، اگر اس کو بنا دے اضمار علی شریطۃ التفسیر کے قبیل سے، لصار تقدیرہ، تو تقدیر عبارت یہ ہو جائے گی فعلوا کل شیء فی الزبر، فقولہ فی الزبر، پس فی الزبر کا جو قول ہے ان کان متعلقا بفعلوا، اگر وہ متعلق ہو فعلوا کے ساتھ، فسد المعنی، تو معنی فاسد ہو جائے گا۔ کیوں؟ لأن صحائف اعمالہم، کیونکہ ان کے اعمال کے جو صحیفے ہیں لیست محلا لفعلہم، یہ ان کے فعل کے لیے محل نہیں ہے۔ لأنہم، کیونکہ وہ لوگ لم یوقعوا، واقع نہیں کرتے، واقع نہیں کیا ہے انہوں نے۔ لأنہم لم یوقعوا، کیونکہ انہوں نے لم یوقعوا، واقع نہیں کیا ہے۔ فیہا، صحیفوں میں، فعلا، فعل کو، بل الکرام الکاتبون اوقعوا فیہا کتابت افعالہم، بلکہ کرام الکاتبین واقع کرتے ہیں صحیفوں میں لوگوں کے افعال کی کتابت کو۔ وَإِنْ كَانَ صِفَةً لِشَيْءٍ، اگر فعلوہ صفت ہو شیئن کے لیے، مع انہ خلاف ظاہر الآیت، باوجود اس کے کہ یہ آیت کے ظاہر کی بھی خلاف ہیں، فات المعنى المقصود، مقصودی معنی بھی فوت ہو جائے گا۔ کیونکہ مقصودی معنی یہ ہے اذ المقصود ان کل شیء هو مفعول لهم، کہ ہر وہ چیز جو لوگوں کا کیا ہوا ہے، کائن فی الزبر مکتوب فیہا، صحیفوں میں موجود ہیں اور صحیفوں میں لکھا جا چکا ہے۔ موافقا لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی بھی موافق ہیں، وکل صغیر و کبیر مستطر، کہ ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی جا چکی ہے۔ لا، یہ مطلب نہیں ہے ان کل شیء کائن فی صحائف اعمالہم مفعول لہم، کہ ہر ایسی چیز جو لوگوں کے اعمال کے صحیفوں میں موجود ہیں، مفعول لہم، لوگوں کا کیا ہوا ہے۔ فالرفع، پس رفع لازم، لازم ہے، اعلیٰ بنابر اس کے ان یکون کل شیء مبتدأ، کہ کل شیء مبتدا ہو، والجملۃ الفعلیۃ صفۃ لشیء، اور جملہ فعلیہ صفت ہو شیئن کے لیے، والجار والمجرور فی محل الرفع، اور جار مجرور رفع کی جگہ میں، رفع کی محل میں، اعلیٰ بنابر اس کے کہ انہ خبر المبتدا، کہ یہ مبتدا کی خبر ہو۔ تقدیر ہو، تقدیری عبارت یہ بن جائے گی کل شیء ہوا مفعول لہم، کہ ہر وہ چیز جو لوگوں کا کیا ہوا ہے، ثابت فی الزبر، وہ صحیفوں میں موجود ہیں، بحیث، اس حیثیت سے، لا یغادر، کہ نہیں چھوڑتا، صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ چھوٹی چیز کو نہ بڑی چیز کو، نہ چھوٹے گناہ کو اور نہ بڑے گناہ کو۔ وعلم، جان لو، انہ قد سبق، کہ یہ بات تو گزر چکی ہے، کہ ان الاسم المذکور، کہ اسم مذکور، اذا کان الفعل المشتغل عنہ، کہ جب فعل اعراض کر رہا ہو اسم مذکور سے، بضمیرہ او متعلقہ، ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے یا اس کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے، امرا او نہیا، امر ہو یا نہیں ہو، فالمختار فیہ النصب، تو نصب اس میں مختار ہیں۔ وظاہر، اور ظاہر بات یہ ہے، ان قولہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، داخل تحت هذه القاعدۃ، یہ داخل ہیں اس قاعدے کے تحت، مع، باوجود اس کے، ان القراء اتفقوا فیہ علی الرفع، کہ قراء نے اتفاق کی ہیں اس آیت میں رفع پر، الا، مگر یہ کہ فی روایت شاذۃ عن بعضہم، بعض قراء سے ایک شاذ روایت بھی ہے، اس میں
नसब हैं। फस्तर्र नुहातो, पस नहवी हजरात मजबूर हुए, एला इस तरफ अन तमहलो के हीला इख्तियार करे, ले अखराज ही इसको निकालने के लिए, अन हादिहिल काइदतिल मज़कूरते इस मज़कूरा कायदे से, ले अल्ला यल्ज़मा इत्तिफाकुल कुर्राए ताकि लाजिम न आए कुर्रा का इत्तिफाक अला गैरिल मुख्तारे गैर मुख्तार पर। वकदा आई मिस्लु आज़ैदुन ज़ुहिब बिही कौलुहु तआला व कुल्लु शैइन फ़अलूहु फ़ी ज़ुबूर। इस इबारत से मुसन्निफ एक और मिसाल देना चाहते हैं जिसमें रफ़ा वाजिब होता है, जिस तरह आज़ैदुन ज़ुहिब बिही की मिसाल थी। इसी तरह एक और मिसाल कुरान करीम से दी है कि बाद उन नज़र में यूँ लगता है कि ये मिसाल माऊज़ में आमिलुहु के कबील से है, लेकिन गौर करने से मालूम होता है कि ये मिसाल भी माऊज़ में आमिलुहु के कबील से नहीं है और इसको मंसूब नहीं बल्कि मरफू पढ़ना चाहिए। वकदा आई मिस्लु आज़ैदुन ज़ुहिब बिही, ये मिस्लु निकाल कर अलामा जामी ने यह बतला दिया कि आज़ैदुन ज़ुहिब बिही का जो हुक्म है वही हुक्म कुल्लु शैइन फ़अलूहु फ़ी ज़ुबूर का है, आई फी सहाइफ़ आमालिहिम। यहां से मिसाल की वजाहत कर रहे हैं कि आयत मज़कूरा में अगर फेल को मुकद्दम करें तो इबारत यह होगी फ़अलू कुल्ल शैइन फी ज़ुबूर। इस सूरत में तरकीब के एतबार से दो इख्तिमाल हैं। नंबर एक, पहला एहतमाल यह है कि कुल्ल शैइन ये फ़अलू के लिए मफ़ऊल हो और फी ज़ुबूर ये फ़अलू के मुताल्लिक हो। तो इस सूरत में तर्जुमा यह होगा कि लोगों ने सब चीजों को नामाए आमाल में किया है। तो इस सूरत में माना गलत बनता है क्योंकि यह काम बंदों का नहीं है बल्कि किरामन कातिबीन का काम है। और दूसरा एहतमाल यह है कि फी ज़ुबूर को ये शैइन के लिए सिफत करार दें, बावजूद इसके कि ये आयत के जाहिर के खिलाफ हैं और इस सूरत में माना मकसूद भी फौत हो जाते हैं। इस सूरत में तर्जुमा यह होगा कि नामाए आमाल में जो चीजें दर्ज हैं उनको बंदों ने किया है, इससे माना मकसूद फौत हो जाता है। मकसूद तो यह था कि बंदे जितने आफाल करते हैं वो सब नामाए आमाल में दर्ज होते हैं, और इसी मानी की तायीद अल्लाह ताला के कौल से जो बाद में आ रही दूसरे स्लाइड में वकुल्लु सगीर व कबीर मुस्ततर से भी होती है। लेकिन इस सूरत में यह माना होते हैं कि जो चीजें नामाए आमाल में लिखी होती हैं इनको बंदों ने किया है। इससे यह वहम पैदा होता है कि बंदों के बाद आमाल ऐसी भी हैं जिनको सहाइफ आमाल में दर्ज नहीं किया गया और ये बातिल है। मालूम हुआ कि नस्ब की सूरत में या तो माने का फसाद लाजिम आता है या मकसूद के खिलाफ लाजिम आता है। रफा की सूरत में मज़कूरा बाला दोनों खराबियों में से कोई खराबी लाजिम नहीं आती। अब तरकीब यूं होगी, कुल्लो मुजाफ हो जाएगा और शैइन मौसूफ और फ़अलूहु ये सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर कुल्लो के लिए मुजाफ इलैह, मुजाफ इलैह मिलकर मुब्तदा और फी ज़ुबूर ये अपने काइनुन के साथ मिलकर, काइनुन या साबितुन के साथ मिलकर ये खबर बन जाएगी। और तकदीरी इबारत यूं हो जाएगी, कुल्लु शैइन हुवा मफ़ऊलुन लहुम काइनुन फी ज़ुबूर मकतूबुन फीहा मुआफ़िकन लिक़ौलिही तआला व कुल्लु सगीर व कबीर मुस्ततर। इसका तर्जुमा यह हो जाएगा कि हर वो शय जो बंदों ने की हैं वो सब आमाल नामा में दर्ज हैं, इस तौर पर कि न कोई छोटा गुनाह लिखने से छोड़ा हो और न कोई बड़ा गुनाह। खुलासा यह है कि यह आयत माऊज़ में आमिलुहु के कबील से नहीं है, लिहाजा इसमें कुल्लु शैइन को मंसूब नहीं बल्कि मरफू पढ़ा जाएगा। आई फी सहाइफ़ आमालिहिम, फी ज़ुबूर से क्या मुराद है? उनके आमाल के सहीफों में। फहुवा लैसा मिन बाबिल इज़मार अला शरीत तफसीर है, ये इज़मार अला शरीत तफसीर की कबील से नहीं है। क्यों? लिअन्नहु लौ जुइला मिन्हु लसारत तक़दीरु, अगर इसको बना दिया जाए माऊज़ में आमिलुहु अला शरीत तफसीर की कबील से तो इबारत ये बन जाएगी फ़अलू कुल्ल शैइन फी ज़ुबूर।
फ़अलू को मुकद्दम करना पड़ेगा। फ़क़ौलुहु फ़ी ज़ुबर, तो फिर ज़ुबर का जो कौल है, इन कान मुतअल्लिकन बेफ़अलू, अगर इसको मुतअल्लिक किया जाए फ़अलू के साथ, फ़सदल माना, तो माना फौत हो जाएगा। लिअन्न सहाइफ़ आमालिहिम, क्योंकि आमाल के जो इनके जो आमाल के सहीफे हैं, लैसत महल्लन लिफ़अलिहिम, उनके फेल के लिए महल नहीं है। लिअन्नहुम, क्योंकि लम युक़िउ, क्योंकि लोगों ने वाक़े नहीं किया है, फीहा, सहीफों में, फ़िअलन फेल को, बलिल किरामुल कातिबून औक़अउ फीहा किताबत अफ़आलिहिम, बल्कि किरामन कातिबीन लोगों के अफ़आल की किताबत को वाक़े करते हैं सहीफों में, लोगों के अफ़आल की किताबत करते हैं सहीफों में। व इन काना सिफ़तन लिशैइन मअ अन्नहु खिलाफ़ु ज़ाहिरिल आयति फ़ातल मअनल मक़सूद, यहां से ये बतला रहे हैं कि अगर फ़अलूहु सिफ़त हो शैइन के लिए, तो ये आयत के ज़ाहिर की भी खिलाफ है और मकसूदी माना भी फौत हो जाता है, क्योंकि मकसूद ये है इस आयत से वकुल्लु शैइन फ़अलूहु फ़ी ज़ुबुर से, कि हर वो चीज़ जो लोगों का किया हुआ है वो सहीफों में मौजूद हैं, लिखा जा चुका है सहीफों में। और ये अल्लाह ताला के इस आयत की भी मुवाफिक हैं, वकुल्लु सगीर व कबीर मुस्ततर, कि हर छोटी बड़ी चीज लिखी जा चुकी है। यह मतलब नहीं है कि हर वो चीज जो लोगों के आमाल के सहीफों में मौजूद हैं वो लोगों का किया हुआ है, क्योंकि इनका मतलब तो यह हो जाएगा कि बाज चीजें ऐसी हैं जो लोगों के किए हुए हैं लेकिन वो सहीफों में मौजूद नहीं है, तो माना गलत हो जाएगा। व इन काना सिफतन लिशैइन, अगर फ़अलूहु सिफत हो शैइन के लिए, मअ अन्नहु खिलाफ़ु ज़ाहिरिल आयत, बावजूद इसके कि ये आयत के ज़ाहिर की भी खिलाफ है, फ़ातल मानल मकसूद, माना मकसूद भी फौत हो जाएगा। इज़िल मकसूद, इसलिए कि मकसूद ये है इन्न कुल्ल शैइन हुआ मफ़ऊलुन लहुम, कि हर वो चीज जो लोगों का किया हुआ है, काइनुन फ़ी ज़ुबुर मकतूबुन फ़ीहा, सहीफों में मौजूद हैं और सहीफों में लिखा जा चुका है। मुआफ़िक़न लिक़ौलिही ताला, अल्लाह ताला के इस कौल की भी मुआफ़िक हैं, वकुल्लु सगीर व कबीर मुस्ततर। ला, ये मतलब नहीं है अन्ना कुल्ल शैइन काइनिन फ़ी सहाइफ़ आमालिहिम मफ़ऊलुन लहुम, कि हर ऐसी चीज जो लोगों के आमाल के सहीफों में मौजूद है वो लोगों का किया हुआ है, ये मतलब नहीं है। फ़र्रफ़उ लाज़िमुन, पस रफ़ा लाजिम है, वाजिब है, नसब पढ़ना जायज नहीं है, बिनाबर इसके अन यकून कुल्लु शैइन मुब्तदअन, कि कुल्लु शैइन मुब्तदा हो, वल जुमलतुल फ़इलियतु सिफ़तुन लिशैइन, और जुमला फ़इलिया सिफ़त हो ये शैइन के लिए। वल जार वल मजरूर फ़ी महल रफ़, और जार मजरूर रफ़ा की जगह में आला, बिनाबर इसके खबरुल अन्नहु खबरुल मुब्तदा, कि ये मुब्तदा की खबर हो, जार मजरूर मुब्तदा की खबर हो। तकदीर हो, तकदीरी इबारत ये बन जाएगी कुल्लु शैइन हुआ मफ़ऊलुन लहुम, कि हर वो चीज जो लोगों का किया हुआ है, साबितुन फ़ी ज़ुबुर, सहीफों में मौजूद हैं, बेहैसु, इस हैसियत से, ला युगादिरु, कि नहीं छोड़ता, सगीरतन, छोटे गुनाह को, वला कबीरतन, बड़े गुनाह को, न तो छोटी चीज को छोड़ता है और न बड़ी चीज को छोड़ता है। वालम अन्नहु क़द सबक़ अन्नल इस्मल मज़कूरा इज़ा कानल फ़िअलुल मुश्तग़िलु अन्हु बिज़मीरिही औ मुतअल्लिक़िही अमरन औ नहयन। वालम से शारिह एक सवाल का जवाब देना चाहते हैं, और ये सवाल माऊज़ में आमिलुहु के मज़कूरा ज़ाब्ते पर होता है। सवाल ये होता है कि माक़बल में आपने कहा था कि जो इसम माऊज़ में आमिलुहु की कबील से हो, यानी हर वो इसम जिसके बाद फ़ेल या शिबह बिल फ़ेल हो, जो उसकी ज़मीर या उसके मुतालिक में अमल करने की वजह से उसमें अमल न कर रहा हो, और वो फ़ेल भी अमर या नहीं हो, तो उस वक़्त नसब मुख्तार होता है। लेकिन बेआइनिही यही सूरत कुरान करीम की आयत में पेश आ रही है, तो इस उसूल का तकाजा तो यह है कि नसब मुख्तार होना चाहिए। हालांकि कुर्रा सबआ का रफ़ा के वाजिब होने पर इत्तेफाक है, और यहां नसब जायज नहीं है, मुख्तार तो दूर की बात जायज ही नहीं है। और वो आयत ये है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी,
فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، اس میں الزانیۃ معطوف علیہ ہے والزانی معطوف ہے. معطوف معطوف علیہ مل کر اس میں مذکور ہیں، اور فجلدو اس اسم مذکور کے بعد فعل امر ہے، اور وہ امر متعلق کل واحد منہما میں عمل کر رہا ہے. اس میں مذکور میں عمل نہیں کر رہا. اس کو اگر الزانیۃ والزانی پر مسلط کریں گے تو یہ فعل یعنی فجلدو اس میں مذکور یعنی الزانیۃ والزانی کو نصب دے گا، لہذا نصب مختار ہونا چاہیے، جبکہ نصب جو ہیں کسی کے ہاں بھی نہیں ہیں، سب رفع پڑھتے ہیں، جبکہ نحوی ضابطہ بتا رہا ہے کہ نصب مختار ہونا چاہیے. وعلم جان لو انہو قد سبق ان الاسم المذکور، کہ اس میں مذکور اذا کان الفعل المشتغل عنہ بضمیرہ، کہ جب فعل اعراض کر رہا ہو اس میں مذکور سے اس کے ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے یا اس کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے، امرا او نہیا، چاہے فعل امر ہو یا نہیں ہو، فالمختار فیہ النصب، تو اس میں نصب مختار ہیں. اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا ان قولہ تعالی الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، داخل یہ داخل ہیں تحت هذه القاعدۃ اس قاعدے کے تحت کہ الزانیۃ والزانی معطوف معطوف علیہ مل کر اس میں مذکور ہیں، اور فجلدوا اس میں عمل نہیں کر رہا، اور فجلدوا جو ہیں کل واحد منہما میں عمل کر رہا ہے. باوجود اس کے ان القراء اتفقوا فیہ علی الرفع، رفع پر اتفاق کیا ہے قراء نے، الا فی روایت شاذۃ عن بعضهم، صرف ایک روایت شاذ ہیں اس میں نصب ہے، باقی جتنے بھی روایتیں ہیں سب کے سب میں رفع ہیں. فاضطر النحاة الى ان تمحلوا لاخراجه عن هذه القاعدة المذکورة، تو نحوی حضرات مجبور ہوئے حیلہ کرنے کی طرف، تو نحوی حضرات نے حیلہ کیا اس مثال کو نکالنے کے لیے اس قاعدہ مذکورہ سے. کیوں؟ لئلا یلزم اتفاق القراء علی غیر المختار، تاکہ اتفاق قراء کا لازم نہ آئے غیر مختار پر. تو اس میں دو قول ہیں، امام مبرد نے بھی جواب دیا ہے اور سیبوی نے بھی اس کا جواب دیا ہے. انشاءاللہ اس کو اگلے سبق میں آپ کے سامنے ذکر کریں گے. آج ہم نے پڑھا ہے وقضا ای مثل سے لے کر علی غیر المختار تک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.